Well, very good afternoon, all of you, dear friends. And first of all, I would like to thanks and I would like to congratulate the entire police team of Meghalaya Police Department, Home Department, for solving this so-called high voltage sensational honeymoon horror mystery. Because one newly wedded couple, namely Mr. late Raja Raghuvanshi ji and his wife called Sonam Raghuvanshi. Two of them had, after just they got married, they planned to visit our northern states called Meghalaya, particularly our international tourist spot Cherrapunji. They came to our northern state on May, I think 21st or 22nd of the May. And on 23rd of May, they got disappeared from the Nongriat village homestay. And after then, the family member of the late Dikij Raja Raghuvanshi ji constantly calling to the Meghalaya authority, Meghalaya police team, and they lodged complaint about the missing of their newly wedded couple. And then after that, just got complaint received from the family. Then our Meghalayan police team started their investigation, and within no time, on the 2nd of June, they got the body of late Dikij Raja Raghuvanshi ji. That too by facing lots of big challenges like cloudy weather, a big terrain, a deep gorge, and of course it's too much heavy rainfall. Even then they tried their best and the best effort to get them, and finally they got the body of the Raja Raghuvanshi ji. Now just after when they just uncovered the truth that they got the dead body of the Raja Raghuvanshi ji, and then what I had to see in the internet and news media of every digital portal, and of course in some of the national news channel also, people were started talking like our Meghalaya, especially our northern state, is a horror zone. Our Meghalayan people, they are murderer, they are this and that, they are robber. So many kind of slandering words for our northeastern region. And some major section of the mainland Indian people were talking like that, people should not go to the Shillong and all this northeastern region because those localities are not good. They are not not a human being, they are a inhuman, they murder the newly couple, this and that, many blah stories they made by themselves. But now today on this day, when I got to know, of course my health is not well, but still I'm following and I'm watching the news, what is going on and who's who, what is the latest update of our country as well as nation as well as international. I just got to know, I rose up from my bed and I got to know that Mrs. Sonam Raghuvanshi is arrested from Ghazipur, UP, Uttar Pradesh. Ghazipur, UP, Uttar Pradesh. At the moment, she is in the under custody of Ghazipur police station. Now our Meghalaya team are asking for their transit remand because place of occurrence is our Meghalaya state. And the so-called lady, for whom actually even I myself were weeping for her, since from many days I prayed to my Almighty Lord Jesus Christ for safely return of Sonam. After just we came to know that conclusion, Raja is no more, now he is no more. We got the dead body of Raja Raghuvanshi ji, and of course for that reason we were mourning deeply for the Raja ji. And
Same at the same hand, we were constantly and continuously we were praying for the safety of Sonam Raghuvanshi ji. But now today only it is uncovered and it is unveiled that she is the person who orchestrated all this murder mystery, horror story, honeymoon horror story. And now people are, still, I'm very utterly, I'm surprised to hear and see that so-called Bipin Raghuvanshi, the brother of late Raja Raghuvanshi ji, he claims himself to be the brother of Raja Raghuvanshi ji in media, national media. Still he is blaming on our Meghalaya police team. Still he is blaming on our Meghalaya police team, and kind of he seems to be, he is so protective for his so-called murderer sister-in-law Sonam Raghuvanshi. It is not wrong to mention and it is not wrong to claim that she is the murderer of late Raja Raghuvanshi ji. Because there is a clear story, there is no confusion. When two of them, newly wedded couple, went for a, trekking or whatever, sightseeing in our Sohra region, Chirapunji area particularly, after some days, we got the dead body of Raja Raghuvanshi, but we found missing Sonam Raghuvanshi. And she was hiding for last 17 days. She was underground. Now when today she got arrested, still this so-called Bipin Raghuvanshi is protecting her. He's saying that no, we couldn't believe that Sonam is involved in this and that. But still the stupid, shameless person is blaming on our Meghalayan police, our Meghalayan authority, who actually has made tirelessly effort to uncover the truth. But still, instead of thankful to us, still he is, defaming us in the national media, which is very unfortunate to see. So why I came through this live media, if any of the family member of this late Rajaji and the horrifying lady Sonam Raghuvanshi, for you people I must speak in Hindi, दो शब्द हिंदी में बोलूँगी. देखिए, हमें बहुत 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 सदमा है राजा जी के लिए. हम बहुत ही ज़्यादा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके परिवार को, कि जो आपके परिवार के साथ जो दुर्घटना घटी वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद भरी दुर्घटना है, और जो कि घटना नहीं चाहिए था. परिवार वाले बहुत खुश थे. दोनों जोड़ों की बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने नई नवेली शादी करवा के उनको आपने बड़े प्यार और बहुत ही एक विश्वास के साथ आपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भेजा. हमारे आसाम आए, पहले माँ कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद उन लोगों ने हमारे मेघालय घूमने का, शिलोंग का ट्रिप बनाया, फिर वो आए. तो आपके ऊपर में, आप लोगों के दिल में हमारे स्टेट्स के प्रति, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारे प्रदेश के प्रति जो प्रेम, जो विश्वास और जो एक लगाव थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि राजा जी के लिए हमें बहुत दुख है. हम पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉट ओनली मेघालय, क्योंकि अगर जब बात हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आती है, तो चाहे वो मणिपुर की बात हो या मेघालय की हो, मिजोरम की हो, अरुणाचल प्रदेश की हो, सिक्किम की हो, या किसी भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड कोई भी स्टेट की इशू हो, हम एक परिवार की तरह अपने आप को हम सोचते हैं. और हम बहुत ही साथ में, हम हमेशा हम संवेदनशील रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने जा रहा है. तो हमें बहुत खेद है और हम भी बड़े शौक में हैं आपके साथ. आपको हम श्रद्धांजलि देते हैं और राजा जी के आत्मा को परमात्मा परम शांति प्रदान करे. इन्हीं शब्दों के साथ साथ हमें बहुत दुख लगा जब आपके परिवार का एक व्यक्ति जो खुद को स्वर्गवासी राजा जी का भाई बता रहे हैं, बिपिन रघुवंशी है, बिपिन रघुवंशी बता रहे ना, विपुल रघुवंशी बता रहे. मुझ में थोड़ा सा उनका नाम को प्रोनाउंस करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसके लिए
मैं माफ़ी चाहूँगी। बट जो मीडिया में अभी बार बार आ रहे हैं वो हमारे मेघालयन पुलिस पर वो आरोप लगा रहे हैं, मेघालयन पुलिस को गाली दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि उसकी भाभी बोलेंगे ना उसकी बहू बोलेंगे क्या है पता नहीं, जो नई नवेली दुल्हन अपने पति को वहां से मध्य प्रदेश इंदौर से यहाँ लेके आए और हमारे उत्तर पूर्वांचल राज्य में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लेके आए और यहाँ उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हस्बैंड की हत्या कर दी अपने मित्रों के साथ मिलकर के। उस औरत के ऊपर में सवालात करने के बजाय आप मीडिया में आकर बार बार हमारे मेघालयन पुलिस के ऊपर तोहमत लगा रहे हो, उसकी तौहीन कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, और आप बार बार बोल रहे हो कि हमारा फोन नहीं उठाते, हमको नहीं बताते। आपको पता होना चाहिए जब भी किसी मैटर या केस की जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस कभी भी पूरी बात, अंदर की बात बाहर लीक नहीं करती है जब तक वो उस तह तक ना पहुंचे, जब तक वो उस कल्प्रिट को नेब ना करे। तो आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए ना। आपको इतना देखने से तो लगता है कि आप काफी पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, साथ ही साथ आपकी आंखों में मुझे कुछ और दिखता है। मुझे लगता है कि इस मर्डर मिस्ट्री में आपका भी हाथ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने खुद आपके भाभी के साथ मिलकर के अपनी भाई की हत्या का प्लान आपने खुद किया हो और आप हमारे मेघालयन पुलिस के ऊपर में तोहमत लगा रहे हो। वाह, जब इस महारानी सोनम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, कितने लोग उसके लिए हम लोग चिंता कर रहे थे और हम मीडिया में पूरा लोगों का कमेंट्स पढ़ रहे थे। हर कोई बोल रहे थे कि मेघालय बहुत बुरा स्टेट है, वहां जाना नहीं चाहिए, शिलोंग का टूरिस्ट स्पॉट को बैन कर देना चाहिए, ये करना वो करना, अगरम बगरम। नॉर्थ ईस्टर्न लोग बहुत ही भूखे नंगे होते हैं, भिखारी होते हैं, वो लोगों को लूटते हैं, वहां के हमारे खासी लोग अच्छे नहीं होते। क्या क्या शब्द आप लोगों ने हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर रहे थे कि सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। हे प्रभु, सोनम जी को सही सलामत कहीं जंगल से भी हो, कहीं भी हो, जिंदा बच्चे जंगल से उसको ढूंढ के लेके आए, उसको प्रभु हमें मिला दीजिए बोल के हम बार बार परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बदनामी से बचाया जाए, बदनाम ना हो करके हम ये कामना कर रहे थे। देखिए, आज जब सच्चाई सामने आ गई, पता चला कि ये तो आप ही का खुद का कुकर्म है। गंदगी तो आप लोग वहां से इंदौर से लेकर आए थे, शैतान तो आपके दिल में पल रहे थे। खामाखा आपने हम जैसे ट्राइबल लोगों का और हमारे जगहों का अपमान किया है। अभी जितने लोग इंटरनेट पे ये सब गंदे गंदे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, स्पेशली शिलोंग के लिए, मेघालय के लिए जो बोल रहे थे, आप सबको माफी मांगना चाहिए। बारी बारी कैसे अपोलॉजी लेटर लिखिए, आप लोग बारी बारी कैसे अपोलॉजी लेटर लिखिए और आपको माफी मांगना चाहिए। आपने हमारा बहुत अपमान किया है, इंटरनेशनल लेवल में आपने अपमान किया है। चिरापुंजी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि हाईएस्ट रेनफॉल वाला वर्ल्ड का अगर कोई जोन है तो वो चिरापुंजी, और उसी को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। और आपकी गंदी साजिश के वजह से, सोनम रघुवंशी, तुम्हारी गंदी चाल की वजह से आज मेरा प्रदेश, मेरा रीजन, मेरा उत्तर पूर्वांचल बदनाम हुए जा रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने में। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? That is very bullshit and we are not going to tolerate such kind of embarrassment, insultancy. You people need to apologize and you people need to clear our state's, North Eastern state's name from this defamation. Otherwise, I duly, humbly submit and urge the authority of Meghalaya government, Honorable Chief Minister of the Meghalaya state, Mr. Conrad K. Sangma ji, my brother, please do initiate legal action against those slanderers, those who slander your state, our northeastern region. And please, police department, I have seen the live media briefing of the Honorable Deputy Chief Minister of the Meghalaya along with the highly dignitarious ranking police personnel. Please go ahead with your proceedings and please get the remand of that so-called cold-blooded murderer lady called, what is her name? Sonam Raghuvanshi. Get the lady to our state and top of the toughest interrogation must be done with her. What kind of evil plot she had in her mind before she entered to our region. And because of
because of this particular lady, we got so much defamatory statements from across the nation, not only from the country, even from the overseas also we got such kind of slandered. That's why अभी मेघालय पुलिस टीम को जरूरी है कि उस हरामजादी को लेके आए, मेघालय में रिमांड पे लेके, और उसके साथ जो 3 लोग मिलके जिन्होंने राजा जी का बहुत ही ब्रूटल हत्या किया है, उन लोगों को लेके आए, क्योंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस हमारा मेघालय है, तो इन्वेस्टिगेशन भी मेघालय में थ्रो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर भारत सरकार सीबीआई दे रही तो सीबीआई टीम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग उन सारे हत्यारों के साथ में मेघालय पधारे और मेघालय पुलिस टीम के सपोर्ट से, उनके अकॉर्डेंस में, उनके असिस्टेंस से आप लोग हर एक पहलू का अंदर तक जाकर के धीत करके आप लोग इस पे आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उस औरत को ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक बेटा को, राजा रघुवंशी को नहीं मारा है, राजा रघुवंशी के साथ में उन्होंने हमारा पूरा 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मर्डर किया है। स्पेशली मेरा मेघालय को उन्होंने खराब से मर्डर किया है। मेघालय जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, लोग मेघालय देखने आते हैं, उस स्टेट को उन्होंने बदनाम किया, उसको मर्डर किया, उसकी हत्या की है। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अस्मिता को हत्या किया है, हमारे आबरू पर उन्होंने हाथ डाला इस लेडी ने। इसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस औरत को उसी तरीके से, जिस तेजदार हथियार से उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई है, उसी तेजदार हथियार से इस औरत का हाथ पांव काट के ना उसको उसी ऊंचाई से उसी खाई में नीचे फेंकना चाहिए। गला डायरेक्ट नहीं काटना चाहिए, आंख एक निकाल देना चाहिए, दांत तोड़ देना चाहिए, नाक सुर्ख नका की तरह नाक काट देना चाहिए। उसके बाद में उसको हाथ पांव काट के उस औरत का ना पूरा चेहरा बिगाड़ के उसको उसी ऊंचाई से नीचे फेंकना चाहिए। वो जिंदा भी ना रहे और मरे भी ना, ऐसा तड़पे, ऐसा सजा उसके लिए तय करना चाहिए। और उसके चेलों को, चमचों को, जिन्होंने एक इतना हैंडसम, इतना बोला वाला लड़का को जिन्होंने जिंदगी से छीन लिया है, वो कुकर्म गंदगी को करने के लिए उसको हमारा ही एरिया मिला था, हमारा ही मेघालय स्टेट मिला था। बेशर्मो, नालायको, राक्षसो, तुम लोग को तो साला नरक में भी जगह ना मिले ऐसा गंदा हरकत करने वालों को। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा दुख में भी हूँ, बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड आई एप्रिशिएट। मैं पूरा मेघालय पुलिस टीम को, आप लोगों को एकदम हैट्स ऑफ बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के इस रिजल्ट से, और बहुत ज्यादा आप लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि आपने जिस तरीके से पिछले 7 दिनों में इस बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है, आगे भी आप लोग जाकर के आप बहुत जल्दी इसको और ज्यादा पिक्चर को क्लियर में लेके आएंगे। ये मैं मेघालय पुलिस टीम से मेरा विश्वास है, उम्मीद है, और मैं आप लोगों को दिल से सलाम करती हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया। हैट्स ऑफ यू पीपल, डबल हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। एंड जाते जाते एक जनरल एडवाइज, जोड़िया जो है ऊपर स्वर्ग में बन के आता है। जिसके साथ में आपका शादी होना होगा वो हो ही जाएगा, जिसके साथ नहीं होना होगा 5 बच्चा 10 बच्चा होने तक रिलेशन होने के बाद भी वो टूट जाएगा। तो जिसको जो जोड़ी पसंद नहीं आता है उसकी मर्डर करने की कोई जरूरी नहीं है, इतना गंदा साजिश चलने की कोई जरूरी नहीं है। आपको पसंद नहीं आता है, आप ब्रेकअप कर लीजिए। आपको पसंद नहीं था शादी तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था, सिंपल सा बात है। और शादी गलती से हो भी जाती है, पसंद नहीं आते तो रिलेशनशिप को क्लियरली बात करके एंड कर दीजिए। ये किसी को मारना, काटना, मरवाना, आपको क्या लगता है दुनिया में कोई भी जुर्म कभी भी, डोंट थिंक दैट कि देयर इज अ परफेक्ट क्राइम, दैट कैन नॉट बी, नेवर एवर हैपन। बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कोई क्राइम करेगा और पकड़े नहीं जाएगा बोल के। सूनर और लेटर यू विल बी कॉट, आपको पकड़ा जाना ही है। इट्स बेटर कि आप इंसानों की तरह जीना सीखिए। ये स्पेशली हमारा इंडिया में मोस्ट ऑफ द लेडीज, अब मैं पिछले कई महीनों से देख रही हूँ, मेरठ वाला वो ब्लू ड्रम वाला हत्याकांड, मर्डर, उसके बाद में और बगरा हस्बैंड को वाइफ लोग मार रहा है, फिर वो एक्स रिटायर्ड डीजीपी को उसका वाइफ ने डाइनिंग टेबल पे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी ये सोनम रघुवंशी। तो ये सब अगर तुम लोगों को ये शादी वादी अच्छा नहीं लगता था तो सिंपली उसी में मना कर देना था ना। किसी का जान लेने का तुमको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।
किसी का जान लेके तुम क्या आराम से इस धरती पर जी पाओगे? ये तुम लोगों का गलत सोच है। जितना भी क्रिमिनल है हमारा भारत देश में, तुम लोग अच्छा से सुन लो, कभी भी कोई भी क्राइम करके कोई नहीं चुपता है। ये बहुत मतलब ये बड्डा सोच को, इस गलत फहमी में रहो ही मत। पता है ये अर्थ जो है, इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हैवी है। आप अगर अर्थ पे अगर आप कुछ भी बोलोगे, आपका बोला हुआ शब्द भी, हमारा मिट्टी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो आप स्काई पे बोलोगे भी तो वो वापस खींच के मिट्टी तक लेके आता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप किसी का हत्या कर देगा, एक परफेक्ट प्लानिंग करेगा, उसके बाद में आप सोचेगा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगी। ये गलत बात है। एवरीबॉडी विल गॉट कॉट। हर कोई पकड़ा जाएगा। तो इट्स बेटर कि कोई क्राइम ही मत करो यार, क्राइम ही मत करो। तुम लोग क्राइम करके कोई कभी खुश नहीं रह सकता है। तो इसीलिए ये मेरा एक जनरल एडवाइस था। और ये कभी मत सोचो अरे दाऊद इब्राहिम तक को पुलिस पकड़ सकता है, ओसामा बिन लादेन तक को पुलिस ट्रैक कर सकता है, गद्दाफी तक को नहीं छोड़ सकता है, अलकायदा टीम को नहीं छोड़ सकता है। तो तुम लोग क्या मामूली सा ये औरत मर्द लोग, तुम लोग को रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगा, शादी अच्छा नहीं लगा, एक दूसरे को पसंद नहीं आया, या डाउट हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो एक दूसरे को मर्डर कर देगा? मर्डर करके आराम से बचेगा सोचता है? अरे सोनम तू कमीनी, मेरा मुंह से ना गंदा वर्ड निकलने दिल नहीं है तुमको। ये सब गंदा काम कुकर्म करना भी था तो तुम अपना इंदौर में करती ना। तुम मेरा ही जगह में आके क्यों किया? मेरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आके क्यों किया? चिन्नाल कहीं की। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न वाले, ट्राइबल वाले, हम लोग ट्राइबल लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं। हमारा नेचुरली ब्यूटीफुल वाला गॉड का दिया हुआ, गॉड गिफ्टेड हमारा प्लेस है। लोग पसंद करते, आते, विजिट करते। तो हमारे लोकल लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। स्पेशली लोकल लोग आपको बहुत सपोर्टिव होते हैं, एक वार्मली वेलकम देते, वार्म हॉस्पिटलिटी देते, कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है। लेकिन तुम लोग गंदगी को अपने दिमाग में, शैतान को लेके आते हो और हमारे जगह पर तुम्हारा टट्टी पोटी पेशाब लेके तुम यहाँ हागने मूतने आते हो, उसके बाद में हमारी जगह को बदनाम करवाते हो। मैं चाहती हूं कि मैं ही क्या, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हर कोई चाहता है कि हर कोई ऑफिशियली आके माफी मांगे। और जो लोग हमें इंटरनेट पे इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे हमारे ट्राइबल लोगों को, गरीब है, बुक्कर है, भिखारी है, बाहर से जब टूरिस्ट आता है तो लोगों को लूटता है, छीनता है, मारकाट करता है, बदतमीज है, हमें गाली दे रहे थे ना, तुम लोगों को माफी मांगना चाहिए। हम लोग पूरा सीने पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर रहे थे, तुम्हारे काटो बड़ी शब्द को हम लोग सह रहे थे। तो तुम लोगों को एपोलॉजी, बिल्कुल एपोलॉजी बनता है, तुम लोगों को एपोलॉजी मांगना चाहिए। जिस तरीके से तुम लोग इंटरनेट पे पूरा हम लोगों को शोषण कर रहे थे ना, हम लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, हम लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे थे, उसका एक एक वर्ड का तुम लोगों को एपोलॉजी मांगना चाहिए। दिस इज व्हाट माय क्लियर मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वी द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल want and we demand your official apology from this mainland Indian people, those who have slandered us and embarrassed us, who have humiliated us. That's it. And finally, once again, well done, hats off Meghalaya police team, and I hope कि आप लोग बहुत जल्दी, very soon you people will again, totally you people will uncover the truth, and this rare of the rarest punishment should be about to this lady, so-called satanic lady, devil lady. And thank you so much for saving our face in front of national, entire nation, that still we northeastern people are very committed, very hardworking, and those who slandered our region, once you people must come and visit, and let's have the glance of our area, our deep gorge, heavy hillock, and this steep of our mountains and so cloudy area, that you people must once visit once, and then only you will come to know, you will find that what kind of challenging task it was for the Meghalaya police team to carry out the investigation. Hopefully, finally and lastly, our police team has nailed it,
and they uncovered the truth, and today God arrested this lady. So I'm very, very happy and thanks. And dear brother Conrad Ji, honorable, our youngest my brother, because once late our father P.A. Sangmaji was like my own father, and he used to call me as his daughter. But now at this time he's not, with us. But still we are family like brother Conrad K. Sangmaji. Well done. And I wish and I pray for your healthy prosperity, your governance up बहुत ज़्यादा. Go ahead, keep it up. This is kind of our tribal English. Well, thank you, and those friends, those who are with me in this live session, and I do earnestly request you all people, please इसको शेयर कीजिए. चाहे मेरा टूटा फूटा लैंग्वेज, इंग्लिश टूटा फूटा हो, हिंदी टूटा फूटा हो, इसको शेयर कीजिए. नए उस तक पहुंचाइए, उन लोगों तक, मेनलैंड इंडियन लोगों तक पहुंचाइए ना, कि हम लोगों को इतना खराब से, नोटिस्तान लोगों को ट्रोलिंग करके हम लोगों को इतना खराब से बेइज्जती करने के बाद आज नतीजा क्या निकला है. ये गंदा तो वो लोग ही यहाँ लेकर आया था ना. बेकार में हमारा मेघालय बदनाम हुआ, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बदनाम हुआ. तो जितना हो सके इसको प्लीज शेयर कीजिए, हर प्लेटफॉर्म में पहुंचाइए, हर ग्रुप में पहुंचाइए, कि हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले क्या सोच रखते हैं और हम उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं. लेट दोज रास्कल बी नो ना. थैंक यू सो मच.